نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم علم الكتاب اللهم تعويل الأحاديث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دو کلاسز سے آپ کا اور میرا صفات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو قائم کریں گے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صفات کے جو لاسٹ دو اپوزٹس جو رہ گئے تھے جس کو ذکر کرنا تھا آپ لوگوں کے سامنے، انشاءاللہ وہ ہم کرتے ہوئے چلیں گے آج، اور پھر اس کے بعد میں صفات لازمہ غیر متضادہ کیا ہیں اس پر یعنی خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم تکمیل کر لیں گے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوئی چلوں، جیسے کہ میں آپ کو بتائی کہ صفات وہ ہیں کہ کیریکٹرسٹک آف اے لیٹر یا کسی لیٹر کی حالت یا کیفیت صفات ہی سے بیان ہوتی ہے، اور جب تک آپ تجوید میں صفات نہیں سیکھیں گے تو آپ یعنی ان مخارج الحروف کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور صفات میں جیسا کہ آپ کو پچھلی دو کلاسز میں بتا چکی ہوں اور دوبارہ آج بھی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ صفات لازمہ سب سے پہلے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صفات لازمہ اور دوسرا صفات عارضہ۔ ایک ہوتا ہے پرماننٹ کوالٹیز جو ہمیشہ حروف میں پائے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرری کوالٹی صفات عارضہ جو کبھی حروف میں پائے جاتے ہیں کبھی حروف میں نہیں پائے جاتے، سبب کی بنا پر وہ حروف میں یعنی موجود ہوتے ہیں یا غیر موجود ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہم سیکھے تھے الحمدللہ وہ تھا صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو صفات لازمہ متضادہ جیسا کہ میں بتائی آپ کو کہ یہ اپوزٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی سمجھی جوڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جوڑ ہوتا ہے، ان کا جوڑے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے، اور جو پانچ ہیں ان کے پانچ جوڑے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل ہمیں یہ 10 صفات سیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں الحمدللہ پچھلی کلاسز میں جیسا کہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ہم ہمس کا اپوزٹ جہر سیکھ لیے تھے، شدت کا اپوزٹ رخوا سیکھ لیے تھے، استعالی کا اپوزٹ استفال سیکھ لیے تھے، اور اطباق کا اپوزٹ انفتاح سیکھ لیے تھے۔ تو سرسری طور پر میں بتاتی چلوں، جب آپ ہمس کے حروف کو ادا کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ وہاں پر آپ کی آواز بند ہو جائے گی لیکن تھوڑی سانس جاری رہے گی، یعنی حروف کے اختتام پر جب آپ اس کو ساکن لگا کر کوئی ہمس کے حرف جو 10 ہوتے ہیں ان کو ادا کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز بند ہو جائے گی اس کو ادا کرتے کرتے، لیکن سانس تھوڑی چلے گی۔ لیکن وہی جہر میں آپ کو بتائی کہ اس کے برعکس رہے گا، جہر میں آپ دیکھو گے کہ سانس نہیں چلے گی لیکن آواز میں بہت زیادہ قوت اور بلندی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ شدت جن حروف میں پائی جاتی ہے وہ شدت یعنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ حروف نہ سختی سے اور بڑی قوت سے ادا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز کا جاری ہونا یعنی آواز کا جاری ہونا ٹہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، قوت کے ساتھ ٹہرے کے آواز کا جاری رہنا نہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شدت میں کیا ہوگا، آپ ان جو شدہ کے حروف ہوں گے اجد قطن بکت، جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ ان میں اتنی سختی اور قوت رہے گی جس کی وجہ سے آپ
यानी महसूस करोगे कि आवाज बंद हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हम क्या पढ़े थे, रिख्वा पढ़े थे। रिख्वा में हम इतनी नरमी से ये हुरूफ अदा करते हैं कि आप देखोगे कि इसमें नरमी की वजह से आवाज जारी रहती है, बनिस्बत शिद्दत के शिद्दत में आवाज आपको बंद हो जाएगी हुरूफ की सख्ती की वजह से। लेकिन वही उसके ऑपोजिट रिख्वा में आप देखोगे कि आप और मैं वो हुरूफ को इतनी नरमी से अदा करेंगे कि आवाज जारी रहेगी। और नेक्स्ट मैं आपको बताई थी कि शिद्दा और रिख्वा के दरमियान एक और सिफत आती है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं होता, जिसकी हालत दरमियानी होती है, और उसके 5 हुरूफ होते हैं जिनको लिन उमर कहा जाता है। लाम, नून, ऐन, मीम, रॉ। हाँ, तवस्सुत भी कहा जाता है, अलबय्यिना भी कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अराबिक में। और जब आप इनको अदा करोगे साकिन के साथ तो आप देखोगे कि इनकी आवाज थोड़ी चलेगी, लेकिन एकदम से शिद्दा की तरह रुकेगी भी नहीं और एकदम रिख्वा की तरह चलेगी भी नहीं, बल्कि एक दरमियानी आवाज को आप लेकर इसको स्टॉप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं और आप सीखे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हुरूफ इस्तिआला और हुरूफ इस्तिफाल थे, जो बिल्कुल एक दूसरे के बरअक्स या ऑपोजिट हैं। हुरूफ इस्तिआला वो 7 हुरूफ हैं जो हम फुल माउथ वाले हुरूफ कहते हैं या हेवी हुरूफ होते हैं, और हम इनको इसी तरह से यानी भरे हुए मुंह के साथ अदा करते हैं, जिसका मजमुआ आप और मैं क्या पढ़कर हैं, खुस्सा दौतिन खिव, ठीक है, ये इसका मजमुआ है। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो था हुरूफ इस्तिफाल, तो इस्तिफाल वाले हुरूफ जितने भी आपको हुरूफ तहज्जी या अराबिक में इसको हुरूफुल हिजा कहा जाता है, उर्दू में हम कहते हैं हुरूफ तहज्जी, ठीक है। यही अराबिक में हम इसको हुरूफुल हिजा कहते हैं, दोनों सेम है। अराबिक अल्फाबेट्स को ये नाम अलग अलग जबान में दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखोगे कि जब आप हुरूफ इस्तिआला यानी जो 7 हुरूफ हैं उनको मोटे अदा करोगे हमेशा, तो इसी के बरअक्स हुरूफ इस्तिफाल जो होते हैं आप इनको हमेशा बारीक अदा करोगे, किसी भी सूरत हाल में ये मोटे हुरूफ जैसे नहीं पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप इत्बाक और इंफिताह को देखे थे। इत्बाक में आपको बताई थी कि ये 7 जो हुरूफ इस्तिआला होते हैं, इनमें से भी 4 ऐसे हुरूफ हैं जो बहुत ज्यादा मोटे अदा होते हैं। अब मोटे किस तरह से अदा होते हैं इसका खुलासा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इनके मखरज को यानी जानोगे और इनके मखरज को या जब आप यानी कोशिश करोगे कि अदा करने के लिए, तो आपको सही से पता होना चाहिए और आपको कॉन्शियसली इसको अप्लाई करते हुए उन हुरूफ को अदा करना है कुरान को पढ़ते वक्त। तो इत्बाक के वो 4 हुरूफ में आप देखेंगे कि इनमें जबान तो अपने मखरज के पास रहेगी, यानी जबान की नोक अपने मखरज के पास रहेगी, लेकिन पीछे से जबान की जड़ उठेगी, और साथ ही साथ इन 4 हुरूफ को क्या होगा, दरमियानी जबान भी उठकर इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो तालु रहता है वहां पे चिपकने का अंदेशा होता है। ओके, ऐसे हो जाती है जबान कि आप यानी इतना पीछे से भी जबान को उठा लेते हो, गोया आपको महसूस होगा, यू विल फील कि आप ना लाइक फुल माउथ अपनी जबान को कवर कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटर्स बहुत ज्यादा आपको हेवी अदा होंगे, ठीक है। अगर आप इसके मखरज को सही तरीके से समझेंगे और अदा करोगे तो इंशाल्लाह दीज विल बी प्रोनाउंस्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एक और चीज मैं यहाँ पे बताती चलूं, अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम इन मोटे हुरूफ को अदा करते हैं तो हम जबान को उठाना तो दूर की बात, हम क्या करते हैं मुंह का सहारा लेके अपने होठों को गोल करके अदा कर देते हैं। स्पेशली आप ना मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप इन हुरूफ जो मोटे यानी हुरूफ हैं इनको आप मिरर के सामने खड़ के अदा करने की कोशिश करें, आप देखोगे
کہ آپ اس کو یعنی کہیں نہ کہیں اپنے ہوٹوں کا استعمال کر کے ہوٹ گول کر کے ادا کرنے کی کوشش کرو گے، یا پھر کم از کم آپ نیچے کے ہوٹ کا استعمال کر کے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے، which should not be done. Actually that is not the correct way of pronouncing these heavy letters. Remember this always, because یہ مسٹیک مجھ سے بھی ہوتی تھی پہلے. کیا تھا، ویری فرینکلی اسپیکنگ، زیادہ تر ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدارس کو نہیں گئے ہیں بچپن سے، یعنی ہم نے یہ دینی علم یا یہ مخرج وغیرہ جو بھی ہے تجوید کا علم، ہم نے اپنے عالموں سے یا اپنی علماء یعنی عالماؤں سے نہیں سیکھا ہے. اوکے، واٹ ایور وی ہیو لرنڈ اٹ موسٹلی تھرو آن لائن کلاسز، بیکاز آف وچ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں یا وچ ایور کلاسز یو اینڈ می ٹرائی ٹو اٹینڈ، ہم وہ ان کے بھیجے ہوئے مخارج کو صحیح سے نہیں سمجھتے، فالو نہیں کرتے، اور بار بار پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، صرف اس ساؤنڈ کو کیچ کر لیتے ہیں کہ یہ ہیوی لیٹر ہے، آواز کو موٹی کرنی ہے کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ہونٹوں کا استعمال کر کے ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از ناٹ دا لائک ایگزیکٹ تھنگ ٹو ڈو ایکچولی، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہونٹ سے ادا ہونے والے صرف 4 حروف ہیں، جو کہ کیا ہے، با، میم، واو اور فا. ٹھیک ہے، بس انہی 4 حروف میں ہونٹوں کا استعمال ہوگا. اس کے بعد 6 لیٹرز ہم ایسے سیکھے ہیں جو حلق کے لیٹرز ہیں، تھروٹ کے لیٹرز ہیں. 3 لیٹرز ہم ایسے سیکھے ہیں جو صرف آپ کے الجوف کے لیٹرز ہیں، جو منہ کے اور حلق کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، the empty space of the mouth and the throat سے. ریسٹ میجورٹی آف دا لیٹرز آپ اور میں دیکھے ہیں کہ وہ زبان کے ہوتے ہیں، اللسان کے لیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ٹنگ کے لیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں ٹنگ سے ہی ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، مے بی ہم دانتوں کا استعمال کرتے ہیں، وی یوز آر teeth and we pronounce these، لیکن دانتوں کا استعمال کن حروف میں ہوگا، کن حروف میں دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا، کن حروف میں زبان کی جڑ کا استعمال ہوگا. all these things we need to learn, only then we will understand exactly اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. دس واز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ شروع میں جب میں بھی کرتی تھی نا، مائی ٹیچر یوز ٹو کریکٹ می کہ رومانہ آپ یعنی ہونٹوں کو گول کر رہے ہو، رومانہ آپ نیچے کے ہونٹ کو استعمال کر کے آپ اس کو ادا کر رہے ہو. آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ. شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، پھر بعد میں when I started practicing، جب میں مرر کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور دیکھتی تھی کہ اپنے ہونٹ کیسے ادا کریں گے، اینڈ بلیو می آج کل نا مجھے بس یہ لگا رہتا ہے کہ اگر میں کسی قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھوں یا کسی کو بھی، یعنی آئی میک شیور کہ میں اپنی استادہ بھی جب پڑھاتی ہیں اور وہ ویڈیو کال پہ رہتی ہیں تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو میں ان کے چہرے کو ہی دیکھتی رہتی ہوں، ان کے منہ کو دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ کون سے حروف کیسے ادا کرتی ہے کر کے. ٹھیک ہے، سو دس واز ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی ہیڈ ٹو شیئر اٹ ود یو پیپل. پلیز صرف سننا بڑی بات نہیں ہے، جب تک آپ سن کر اس کو پریکٹس میں نہیں لے کر آئیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ آپ کو کرنا ہے جب آپ چاہتے ہو. ایک بات یاد رکھو، آج تک آپ اور میں زندگی میں جو بھی سیکھے ہیں نا، وہ دنیا داری کے لحاظ سے سیکھے ہیں، لیکن آج میں اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ نے جو محفل میں آپ کو بیٹھنے کا موقع اور دیا ہے اور چنا ہے آپ کو اور مجھے، الحمدللہ اس کا ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، صحیح طریقے سے اس کو سیکھنا ہے، اینڈ قرآن میں اپلائی کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو نیکسٹ جو تھے انفتاح تھے، اور انفتاح ہمیں وہ حروف ہیں جو ہمیشہ یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں، اینڈ یو ول سی کہ جب آپ ان کو ادا کرو گے تو یور ٹنگ ول ناٹ ایلیویٹ فرام دا مڈ اور فرام دا بیک. زبان نہیں اٹھے گی، ہر حال میں زبان فلیٹ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا یہاں تک کا خلاصہ جو میں لاسٹ 2 ویکس میں I have already given, but میں ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ. Yes, I will definitely I was just not able to make notes in the Roman Urdu or English. That's the reason I didn't send the PDF. Inshallah, very soon I'll do it. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں نمبر بعد میں ڈال دوں گی اپنا. اگلا جو تھا انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں وہ ہے اضلاع.
ठीक है। इजलाक अगर आप देखें लुग़वी माना या डिक्शनरी मीनिंग फिसलना या किनारा। ओके, फिसलना समथिंग इज विच विल स्लिप और समथिंग विच विल हैव सम साइड, सम शोर कहते हैं ना, आप जिसको दरिया का किनारा कहें तो शोर कहते हैं उसको, ठीक है, जो किनारे पर हो या जो जबान से फिसलता हुआ हो। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है इनको मुज़लिका कहते हैं। वजाहत इस तरह है, द एक्सप्लेनेशन इज एज सच कि ये हुरूफ प्लीज लाइक दरमियान में अगर आप मुझे बार बार मैसेजेस करते रहेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू टेकिंग द क्लासेस दिस वे। ओके प्लीज, लास्ट में जब मैं आपको मौका दूं तो आप लोग मैसेज से मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है, या ऑन करके आपकी बात करके मुझे पूछ लीजिएगा सवालात। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ यानी ये हुरूफ होठों और जबान के किनारे से बहुत सहूलत और जल्दी से अदा होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इजलाह वाले हुरूफ वो हैं जो जबान से अदा होते हैं, लेकिन ये हुरूफ जबान के जो किनारे होते हैं इनसे अदा होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि लाम, लाम आप अगर प्रॉपरली अदा करो या अगर आप अल अल कहोगे तो आप देखोगे कि आपकी जबान के जो पतले किनारे हैं वो ऊपर के 6 दांतों या 8 दांतों की जड़ से यानी उसके गम से लगकर ना आपको अदा होगा लाम। तो ये क्या होगा, जबान के जो सामने के पतले आई मीन साइड्स के पतले किनारे होते हैं ये लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह इजलाख वाले हुरूफ जो होते हैं होठों और जबान के किनारे से बहुत सहूलत और जल्दी से अदा होते हैं। अब आप फा, 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 लाम, लाम या अल आप करके देखिएगा, ये बहुत यानी ऐसे महसूस होगा कि आसानी से ये फिसलते हुए अदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं लाइक सिक्स लेटर्स हैं ये इसके इजलाह के, जिनका मजमुआ आपको फर्रा मिन लुब, फर्रा मिन लुबिन कह लीजिए या लुब कह लीजिए, ठीक है। दीज आर द 6 लेटर्स ऑफ इजलाह। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है सिफात या क्वालिटी ऑफ द लेटर लुग़वी माना या डिक्शनरी मीनिंग मना करना या ठहराव पैदा करना। दैट मीन्स कि समथिंग आप डिनाई कर रहे हो, आप मना कर रहे हो या ठहराव पैदा कर रहे हो, यानी ये लेटर्स ऐसे हैं जो स्लिप होकर आसानी से अदा नहीं होंगे, बल्कि आप इसमें जब इसको प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ ठहराव आ रहा है, ठीक है। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुस्मिता कहते हैं। वजाहत या एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि ये हुरूफ अपने मखरज से मजबूती और जमाव से अदा होते हैं, आसानी और जल्दी के साथ नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द इजलाह। इजलाह में मैं आपको बताई कि आप जब इन हुरूफ को इजलाह के जो फा, रॉ, मीम, नून, लाम, बा, ओके 6 लेटर्स हैं, जब आप इनको अदा करोगे तो आप देखोगे कि आसानी से आपकी जबान से या आपकी टंग से फिसल कर स्लिप होकर अदा हो रहे हैं, ओके। दैट मीन्स दे विल सो इजीली बी प्रोनाउंस्ड बाय यू दैट यू विल फील दैट दे आर जस्ट स्लिपिंग फ्रॉम योर माउथ। जैसे आप अगर सिल्क का कपड़ा पकड़े तो आपके हाथ में से कितनी आसानी से फिसल जाता है, तो इस तरह स्मूथली यानी अदा हो जाते हैं। वही अगर आप इस्मात को देखोगे तो आप देखोगे कि इनमें थोड़ी मजबूती होती है अदा करते वक्त ये हुरूफ, और जमाव भी होता है, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस इंशाल्लाह, जब हम इसको अदा करेंगे इंशाल्लाह वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जैसा आप देख लो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल्स नॉट एग्जाम्पल्स उसके लेटर्स दिए गए हैं जो कि एक बड़ा सा मजमुआ है, विच वी डोंट हैव टू लाइक, हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इजी आपको तरीका सिखाऊंगी कैसे हम सिफात और उसके ऑपोजिट्स को याद रखेंगे इंशाल्लाह, ओके। सो दैट विल मेक अस इजियर फॉर अस टू रिमेंबर इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे देखोगे जब आप जीन को अदा करोगे या जाल को अदा करोगे, अज, 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 मैं यहाँ पे खलखला नहीं कर रही हूँ इसलिए कि आप लोग समझें इसको कि इनमें आप अदा करोगे तो एक तरह की आपको मजबूती महसूस होगी, दे विल नॉट इजीली स्लिप फ्रॉम योर टंग, ठीक है। तो इसलिए मैं वहां पे खलखला नहीं कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सिफाते लाजिमा मुतजादा समझ में आए होंगे इंशाल्लाह।
अब इसका मैं और थोड़ा खुलासा करूंगी कि कैसे आपको याद रखना है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक पीडीएफ भी ऐसी है जिसमें हर हर्फ का, यानी जो सिफात लाजिमा मुतजादा है या गैर मुतजादा है, जैसा कि मैं आपको बताई, मिनिमम एक लेटर में अराबिक के कम से कम 5 से 7 सिफात तो होते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको यानी वो पीडीएफ के जरिए, पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी इंशाल्लाह टेलीग्राम का जो तजवीद का ग्रुप है उसमें, और आप देखोगे कि हर हर्फ के साथ सिफात लाजिमा मुतजादा कौन से हैं और सिफात लाजिमा गैर मुतजादा कौन से हैं उस हरूफ में मौजूद, वो आप देखोगे उसमें चार्ट की तरह से बहुत बेहतरीन अंदाज में बना कर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उसको पढ़ना है, उसको समझना है और उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट जो है आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप और मैं अगर आप देखोगे तो इससे पहले, हाँ चले ये मैं फिनिश कर लूं, फिर आपको आगे दूसरा इन्हें डिस्कस करूंगी। सिफात लाजिमा गैर मुतजादा, यानी ये सिफात लाजिमा ये परमानेंट सिफात या क्वालिटीज होते हैं हरूफ में, लेकिन ये गैर मुतजादा यानी इनके कोई ऑपोजिट नहीं होते, इनकी बस अपनी शनाख्त, अपनी क्या बोलते हैं आइडेंटिटी होती है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी, एंड दे डोंट हैव एनी ऑपोजिट एग्जैक्टली लाइक ऑपोजिट्स टू देम, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिफात लाजिमा गैर मुतजादा, दे हैव नो तजाद, दे हैव नो ऑपोजिट्स ऑफ देम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिफात लाजिमा गैर, एक्सप्लेनेशन या तारीफ, ये हरफों की वो लाजमी और जरूरी सिफात हैं जिनका हरूफ में पाया जाना लाजमी और जरूरी हो, मगर अपने मफहूम के एतबार से बिल्कुल अलग अलग हों, इनमें मुकाबिला ना हो। ये सिफात बाज हरूफ में होंगी और बाज में ना होंगी। ओके, सो ये मौजूद होती हैं लाजिमी तौर पर हरूफ में, लेकिन चंद हरूफ में मौजूद होंगे ये सिफात और चंद हरूफ में ये सिफात मौजूद नहीं होंगे, एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन लाइक द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ लेटर। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसके ऑपोजिट्स वगैरह कुछ होते हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो इसमें आता है कलकला, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो मिसबा की क्लास अटेंड करते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, वो आपको इसका खुलासा कर चुकी हैं। बट देन हैविंग सेड दैट अगेन मैं इसका और थोड़ा खुलासा करना चाहूंगी ताकि इसकी आपको इंशाल्लाह क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग जो होता है जुम्बिश देना, हरकत देना, यानी आप इसको इन लेटर्स को जब अदा करोगे तो इनको इनके मखरज के पास हल्का सा बाउंस कराओगे, ठीक है। ये अपने मखरज पर टक्कर खाकर अदा होते हैं, इसी को कहते हैं कि जुम्बिश देना या हरकत देना। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको कलकला कहते हैं। एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त हालत सुकून में मखरज में जुम्बिश और हरकत पैदा होती है। So whenever you pronounce these qalqala letters, you will find that these letters will have some bouncing in it. Okay, ये जब भी आप इसको अदा करोगे, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊं, जब भी मैं ज्यादातर यानी मेरे में भी थी ये क्वालिटी, और ऐसे ही होता है कि जब हम तजवीद के इल्म को नहीं जानते ना तो वी विल नॉट नो के हम ना सुकून, छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके, वी जस्ट रैंडमली हम कुरान की तिलावत कर लेते हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे हम सही से पढ़े नहीं, बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता। तो यानी आप इसको बहुत अच्छी तरह से आपको और मुझे जानना है कि कलकला के 5 लेटर्स के अलावा कुरान में जितने भी बाकी जो हरूफ तहज्जी या हरूफुल हिजा के लेटर्स हैं, इन पर अगर साकिन आए तो आप और मैं इसको हरगिज नहीं हिलाकर पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम क्या करते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो वो क्या, इन हरूफ के पास जब साकिन आए कलखला के अलावा जितने भी हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं 24 या 23, जब आप इन पर पहुंचते हैं साकिन हो तो आप और मैं क्या करते हैं, वहां पर हिला देते हैं, कलखला की तरह कर देते हैं, जो कि हरगिज भी नहीं करना है, ठीक है। ये भी गलत है, लहने जली में ही आएगा ये और हराम गलती है।
تو قلقلہ کے یہ 5 لیٹرز جو بہت بہت ایزی اور بہت یعنی جانتے ہوں گے آپ میں سے سب کوئی، ہر کوئی الحمدللہ، تو یہ ہیں 5 لیٹرز ہیں قطب جد، جن کا مجموعہ ہے قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، یہ 5 لیٹرز ہیں الحمدللہ۔ چلے یہاں تک یہ پی ڈی ایف ختم ہوا، اب میں اس کا تھوڑا آپ کو قلقلہ کے لیٹرز کا خلاصہ کر لوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ قلقلہ کے جو 5 لیٹرز ہیں ان کے اندر صفت جہر ہوتا ہے، یعنی صفت جہر کیا ہے آپ اور میں سیکھے کہ جب آپ ان کو ادا کرو گے یہ حروف قاف طا با جیم دال، تو آپ دیکھو گے کہ ان میں سختی ہو، بلندی ہوگی اور قوت ہوگی ادا کرتے وقت. Okay, you will feel an immense strength in pronouncing these letters and you will have some kind بہت بلند ادا ہوں گے یہ. اوکے، ایک کائنڈ آف لاؤڈنس رہے گی ان میں. اور دوسری جو صفت ان میں پائی جائے گی ان لیٹرز میں، بعض لیٹرز میں صفت شدت، یعنی وہاں پر سختی بھی ہوگی اور قوت، دیر اگین اسٹرینتھ رہے گی بہت لیٹرز کو ادا کرتے وقت. اور اسی لیے ان لیٹرز میں قلقلہ لایا گیا. وجہ کیا ہے ان لیٹرز میں 5 حروف میں قلقلہ لانے کی، وہ میں اور آپ دیکھیں گے. اگر ہم جیم کو قلقلہ کے بغیر، فار این ایگزامپل جیم آ کر قلقلہ کا لیٹر ہے، لیکن جیم کی صفت میں آپ دیکھو گے کہ اس میں شدت ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس میں آپ کو یعنی جہر بھی پایا جائے گا. تو دونوں سختی، قوت اور بلندی یہ حرف میں پائے جائیں گے. تو اس لیے ایگزامپل کے طور پر اگر ہم جیم کو قلقلہ کے بغیر ادا کریں تو آواز فوراً بند ہو جائے گی اس کے مخرج پر. آواز بند ہو گئی تو اس حرف پر شدت پیدا ہو گئی. اب اس دباؤ یا بھاری پن کو، شدت کو ختم کرنے کے لیے یا ہارڈنس کو ختم کرنے کے لیے اور سافٹنس لانے کے لیے اس کے اندر ہم صفت قلقلہ کو لائیں گے. تو سمجھ میں والی بات کیا ہے؟ اب میں اس کو جیم کو ساکن لگاؤں گی اور اس سے پہلے حمزہ پر فتحہ لگا کر میں پڑھوں گی، زبر لگا کر پڑھوں گی. تو آپ دیکھیں اگر میں اس جیم کو قلقلہ نہیں کروں گی تو آپ اس کو یعنی محسوس کرو گے کہ یہ بہت اسٹرانگلی ادا ہوگا. اج 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 دیکھیں آپ جب میں جیسے ادا کر رہی ہوں آپ کو محسوس ہوگا اس میں ایک سارٹ آف ہارڈنس ہے، ٹھیک ہے، ایک بھاری پن ہے، بہت زیادہ سختی سے بھی یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سختی کو تھوڑا نرمی میں بدلنے کے لیے، اس کی آواز کو ایک دم سے بند نہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، اس میں قلقلہ لایا گیا. اور اس کو اس طرح سے بیوٹیفائی کرنے کے لیے. دیکھیے صفات یا کوالٹیز آف دا لیٹر کیوں ہوتی ہیں پتا ہے؟ کسی حرف کو بیوٹیفیکیشن دینے کے واسطے. جب آپ اس کو ادا کرو گے ایک تو آپ کو معلوم ہوگا باقاعدہ کہ یہ یعنی فلاں لیٹر ہے، فلاں لیٹر ہے. جسٹ ہم اس کی ساؤنڈ سنیں گے تو آپ کو اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ خا ہے، سین ہے، صاد ہے، سین ہے، زال ہے، زا ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. ساؤنڈ سے شناخت الحمدللہ ہو جائے گی. یہی کوالٹیز کی خوبصورتی ہے. جب آپ ان کو ادا کرو گے تو آپ اسپیسیفائی کر سکو گے کہ یہ ہا ہے، ہا ہے، ٹھیک ہے. ڈفرینسیشن آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا. تو اسی طرح یہ جیم میں قلقلہ لایا گیا. اب میں دیکھیے میں 2 بھی پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی، آپ خود محسوس کیجئے گا. اج اج یہاں پہ میں کیا کی؟ قلقلہ نہیں کی، ٹھیک ہے. تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹرینتھ آ رہی ہے، بہت زیادہ ہارڈنس آ رہی ہے لیٹر میں. وہی میں یہاں پہ قلقلہ ایڈ کر کے اس کو پڑھوں، اج 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 اج. دیکھیے آپ کتنی سافٹنس آ گئی اس میں، باؤنس بھی ہو رہا ہے. اور قرآن کی تلاوت جب آپ کرو گے نا، جب جیم آئے گا درمیان میں یا آخر میں اس طرح کا، تو آپ کو وہ بیوٹیفیکیشن، وہ خوبصورتی محسوس ہوگی تلاوت میں، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اسی لیے قلقلہ کو لایا گیا تاکہ جہر اور شدہ والی صفت جو ان 5 حروف میں ہے اس کو ختم کی جائے، یعنی وہ ہارڈنس ختم کی جائے اور اس میں تھوڑی سی نرمی لائی جائے الحمدللہ، ٹھیک ہے.
अच्छा, खलखला को अदा करने का तरीका भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको सिर्फ देखिए, सबसे पहले तो मखरज को जानना है, ठीक है? और मखरज पर अपनी ज़बान को लेकर जाएँगे। आप समझिए जैसे ऑफ, ऑफ कहाँ से अदा होता है? आपकी ज़बान की जड़, आपकी यानी ज़बान की जड़ या रूट ऑफ द टंग, उसके एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट नरम तालु को या सॉफ्ट पैलेट को लगकर अदा होता है, ठीक है? तो जो हुआ वो आपके ऊपर के 2 दांत की जो जड़ होती है या गम्स कह लीजिए इंग्लिश में, मसौड़े जो कह लीजिए, इस पर लगेगी और पीछे से ज़बान उठेगी, दरमियान की ज़बान भी उठेगी और ऊपर के तालु से चिपकेगी, ठीक है? तभी तो, 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 इस पे होठों का कुछ कमाल नहीं रहेगा, ठीक है? बा, बा सिंपल वी नो कि ये होंठ का हरूफ है। जीम आप जानते हैं दरमियानी जबान से अदा होता है, और दाल आप और मैं जानते हैं ये भी जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के जड़ से लगेगी यानी गम से लगेगी तो अदा होगा, ठीक है? तो ये हम जानते हैं कि ये 5 हरूफ इस तरह से। अब जब हम इनको बाउंस कराएंगे ये हरूफ पर साकिन देकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मैं जो नोट करती हूँ वो क्या करते हैं, बाउंस कराते वक्त इन हरूफ में सिर्फ उसके मखरज पर जबान ले जाकर बाउंस नहीं कराते, बल्कि उसके साथ ए ऐड कर देते हैं। आप इसको इंग्लिश का ए कह लीजिए या इसको आप हिंदी जो जानते हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज तो उसका अ कह लीजिए, ठीक है? ये ऐड सॉरी आ कह लीजिए, यानी फर्स्ट होता है जो ववल्स का अ आ, अ आ यही होता है ना हिंदी में, तो आ ऐड कर देते हैं या इंग्लिश का ए ऐड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, वो कलकला का सही तरीका नहीं है। एक और मिस्टेक यहाँ पर हम लोग करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, कलकला को करने के चक्कर में हम इन हरूफ पर इतना स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, ऐसे लगता है कि वहां पे उस हर्फ पर यानी शद्दा है, आप शद्दा को अदा कर रहे हो फिर कलकला को अदा कर रहे हो, तो ये भी गलत तरीका है। जब आप इसको अदा करोगे तो आप इसको फौरन अदा करोगे, जल्दी अदा करोगे, कैसे? अद, अज, अब, अप, अक, इस तरह से, ठीक है? अब इसमें एक कैसे ऐड होगा, अक, अप, अब, अज, मैं क्या की ए ऐड कर दी इसमें, तो ये गलत तरीका है, ठीक है? जस्ट उसके मखरज को प्रॉपरली समझना है, मखरज के पास जाना है और उसको जल्दी से सिर्फ बाउंस कराना है। अक, अक, अब, अज, अद, खत्म, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हासिल होगा इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस आप लोगों को सही तरीके से करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट देखें इस पर, ये भी शायद मिसबा आपको खुलासा करके है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा इसको रिपीट करती चलूं। कलकला 3 टाइप्स का होता है, कोई कोई यानी इसको 4 टाइप्स भी कंसिडर करते हैं, 5 टाइप्स भी कंसिडर करते हैं, कंफ्यूज ना हो। राजे ओपिनियन जो होता है उलमा का, यानी मेजॉरिटी ऑफ द उलमा या मेजॉरिटी ऑफ द तजवीद उलमा जो कंसिडर करते हैं वो 3 है, ठीक है? कोई कोई इसको 4 भी क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि गलत नहीं है, ठीक है? वो और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से ये 3 क्लासिफिकेशन में रखें, 3 टाइप्स में रखें, तो आपको और मुझे याद रखने में भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कलकला सुगरा वो होता है, इसको आप गौर से सुने, और जिन जिन के पास मुसहफ है मेहरबानी कर कर अपने मुसहफ को खोलें और सूरतुल लहब पर आए। सूरे मसद कह लीजिए, सूरे लहब कह लीजिए, तब्बत यदा, जिन जिन के पास साइट पे यानी अपने मुसहफ है आप उस पर आए। इंशाल्लाह मैं जब आपको बताऊंगी, इसका खुलासा करूंगी, तो आप बेहतर अंदाज से इसको समझ सकोगे, और उसके बाद हम सूरह इखलास पर भी इसको देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो कलकला सुगरा यानी अगर कलकला का हर्फ लफ्ज के बीच में आ जाए और वो साकिन हो यानी इस पर सुकून असली हो, तो कुरान में आप देखोगे कई सारे अल्फाज ऐसे होंगे जिनके दरमियान में आप कलकला का लेटर देखोगे, यानी ये 5 जो लेटर्स हैं कलकला के, इसमें से एक लेटर आप लफ्ज के दरमियान में देखोगे और वहां पर आप देखोगे कि ऑलरेडी वहां पे साकिन होगा,
या सुकून होगा या जिसको जज़म कहते हैं उर्दू में, ठीक है। आप वहां पे नहीं लगाओगे स्टॉपिंग की सूरत में, और आपकी सांस टूटे भी तो वहां पर आप यानी वो खलखला के लेटर को साकिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो बीच में रहता है, दरमियान में रहता है। ये बात गौर फिक्र है, ठीक है। ये जो भी खलखला सुगरा है, इसमें ये अक्सर ना जो भी लफ्ज होते हैं, लफ्ज के दरमियान में आएगा खलखला का एक लेटर जिसपे ऑलरेडी साकिन होगा। इसी को असली सुकून कहते हैं, यानी वो ऑलरेडी वैसे ही यानी नुजूल हुआ, वैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया और लिखाया भी, ठीक है। तो इसको असली सुकून कहते हैं, और वहां पर आप यानी हल्की सी जुम्बिश या बाउंस करके उसको अदा करोगे, ठीक है, इतना ही है। लेकिन वही अगर आप देखोगे कलकला कुबरा, या बाद इसको कलकला मुतवस्सिता भी कहते हैं, ये भी याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो दरमियानी कलकला है, कलकला मुतवस्सिता, तवस्सुत यानी दरमियाना, ठीक है, या इसको कलकला कुबरा भी कहा जाता है, क्योंकि मैं ये दो भी पढ़कर हूँ अलग अलग उस्ताजा से। मैंने इसका नाम कलकला मुतवस्सिता भी सीखा है और कलकला कुबरा भी सीखा है, इसीलिए मैं आपके सामने इसका खुलासा कर रही हूँ, क्योंकि आगे अगर आप कहीं पर से गुजरे इससे, या अगर कोई दूसरी क्लास में आप सीखें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इंशाल्लाह, ये दोनों सेम है। तो ये जो कलकला है, कलकला का हर्फ लफ्ज के आखिर में आ जाए, यानी whenever you are reciting the Quran and you will see a word in which there is the letter of qalqala at the end of the letter, ठीक है, और वो मुतहर्रिक हो यानी उस पर कोई हरकत होगी, ठीक है, वो कलकला का लेटर होगा, लफ्ज के आखिर में आएगा और उस पर कोई हरकत होगी, लेकिन आप क्या करोगे वक्फ करने की सूरत में, या आपकी सांस टूट गई, देखो एक होता है आयत के खत्म पर आप और मैं स्टॉप करेंगे, ठीक है, वक्फ करेंगे, एक होता है हम पढ़ते रहते हैं और दरमियान में सांस टूट यानी सांस टूटने की वजह से हम वहां पे रोक देते हैं। अब आप रोकोगे वहां पर एंड देन यू सी देयर यू हैव अ कलकला लेटर एंडिंग, तो आपको और मुझे वहां पे क्या करना है, ये समझना है कि ये कलकला कुबरा या कलकला मुतवस्सिता है। आप इस हरकत वाले लेटर को क्या करोगे, साकिन आप दोगे, ठीक है, आप दोगे, ये असली सुकून नहीं रहेगा, आप दोगे और यहाँ पर बाउंस करके पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप मुसहफ को देखो, जब आप देखोगे सूरतुल लहब को, तो उसकी थर्ड आयत आप देखें, ठीक है, सॉरी सेकेंड आयत आप देखें, थर्ड आयत आप देखें, फोर्थ देखें और फिफ्थ देखें, मैं तमाम पढ़ूंगी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आयत नंबर 2 में कसब यानी खलखला के लेटर पर मुतहर्रिक है, वो बा पर जबर या फतहा है, ठीक है, लेकिन आपको और मुझे वहां पर स्टॉप करना है, वक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, 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 ठीक है। आप स्टॉप कर रहे हो, कलकला का लेटर आ रहा है, उस पर हरकत है, हरकत को हटाओगे, साकिन दोगे और फिर आप उसको बाउंस करोगे, ठीक है, आसानी से आराम से बाउंस करोगे, ना उसमें ए ऐड करोगे ना उसमें शिद्दत पैदा करोगे। वही यहाँ पर देखें, ज़ात लहब, 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 ठीक है, अल हतब, अल हतब, मसद, 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 तमाम जगह पर आप देखोगे वहां पर फतहा है या कसरा है, यानी जबर है, जेर है या तनवीन है, ठीक है। आप उसको आरजी या टेम्पररी सुकून दे रहे हो स्टॉपिंग की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको क्या हुआ, कलकला कुबरा या कलकला मुतवस्सिता, ठीक है, ये सेकेंड वाला हो गया। एक और बात मैं इसको बताती चलूं, ये मिसबा ने ऑलरेडी बताया होगा, मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर दूं। सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कलकला के लेटर्स आ रहे हैं, ज्यादातर तमाम आयतों में दाल आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी थर्ड आयत को पढ़ोगे, अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद,
ठीक है, कंटिन्यू पढ़ लिए। तो कंटिन्यू पढ़े तो क्या हुआ, ये जो लम यलिद है ना, ये क्या हुआ, आपको दरमियान में आ गया, क्योंकि आप आयत को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको क्या बताई थी, कलकला सुगरा में लफ्ज के दरमियान में आपको कलकला का लेटर आएगा और उस पर असली सुकून रहेगा। ओके, यहाँ पे जो ये सूरतुल इखलास की ये 2 आयतें हैं, अगर आप अपने मुसहफ में देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि लाम अलीफ भी लिखा हुआ है और छोटा सा अरबिक का 5 लेटर 5 या 5 करके लिखा हुआ है। ये 5 क्यों आता है पता है, क्योंकि उलमा का यहाँ पे इख्तिलाफ होता है कि बाज उलमा कहते हैं लम यलिद पे आयत एक आयत हो गई, वलम यूलद एक अलग अलग आयत है। ठीक है, लेकिन बाज उलमा कहते हैं लम यलिद वलम यूलद पूरी मिलाकर एक आयत है। ठीक है, तो ये इख्तिलाफी मसला है जिस पर क्या किया जाता है, आप देखोगे कि बाज जगह पे आयतों के दरमियान में ये अराबिक 5 लिखा हुआ होता है, तो वहां पे आपको और मुझे समझना है कि ये इख्तिलाफी मसला है। ठीक है, और आप इसमें देखोगे एक लाम अलीफ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लाम अलीफ यानी उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, स्टॉप नहीं करना है, यानी वक्फे खबीस कहा जाता है। वक्फ जो स्टॉपिंग के जो रूल्स होते हैं कुरान में, आप देखते हैं ना, छोटा जीम लिखा हुआ है, मीम लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, इस तरह की चीजें, तो ये इसको लाम अलीफ को वक्फे खबीस कहा जाता है, यानी यहाँ पे रोकना नापसंदीदा कंसिडर किया जाता है। ओके, नापसंदीदा कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी सांस टूट गई तो उलमा तजवीज करते हैं कि हम आयत को थोड़ा पीछे से इयादा करते हुए आए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे लम यलिद पढ़ी, ठीक है, मेरी सांस टूट गई। फॉर एन एग्जाम्पल आयत लंबी थी, मेरी सांस टूट गई, तो मैं यहाँ पे लाम अलीफ देख रही हूँ, तो ये वक्फे खबीस हो गया, नापसंदीदा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको वलम यूलद से नहीं पढ़ूंगी मैं, बल्कि मैं फिर पीछे से जाऊंगी, लम यलिद वलम यूलद पढ़ूंगी। ठीक है, इसको इयादा करना कहते हैं, यानी पीछे से फिर आयत को स्टार्ट करना। तो ये एक हो गया। दूसरा, यहाँ पे मैं जो बात को आपको फोकस कराना चाहती हूँ, मैं आपको बताई कि कलकला सुगरा जो है वो लेटर वर्ड के या लफ्ज के दरमियान में आता है और उस पर असली सुकून होता है। तो यहाँ पर जब आप और मैं लम यलिद वलम यूलद मिलाकर पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट 1 आयत हो गई। और ये जो लम यलिद के दाल पर साकिन आप देख रहे हो, ये आपको कलकला सुगरा होगा। इस तरह पढ़ने की सूरत में, कंटिन्यूएशन पढ़ने की सूरत में, अगर आपसे कोई पूछे कि ये दाल पर जो साकिन है ये कौन सा कलकला है, तो आप और मैं कहेंगे कि ये कलकलतुस सुगरा है। लेकिन वही अगर आप और मैं इसको लम यलिद पर रोक दें, वलम यूलद अलग पढ़ें, तो वहां पर ये कलकला मुतवस्सिता होगा, क्योंकि मैं लम यलिद पर रोक दी, मैंने वहां पे रोकने की सूरत में वहां पे कलकला किया। ठीक है, इसलिए इसको क्या होगा, सॉरी खलखला तो होगा ही, और मैं इसको वहां पे स्टॉप कर ली, तो मैं क्या की, वक्फ कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। तो खलखला कुबरा कब होता है, जब आप खलखला के लेटर पर स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, स्टॉप कर रहे हो। माइनर कंफ्यूजन है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में क्या होगा, यहाँ पे लम यलिद के दाल पे कलकला सुगरा होगा, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हो, और लम यलिद वलम यूलद में दाल दरमियान में आ रहा है। लेकिन वही आप और मैं लम यलिद पे स्टॉप कर देंगे, तो स्टॉप करने की सूरत में वहां पे आप वो दाल वाले साकिन को क्या कहोगे, कलकला मुतवस्सिता कहोगे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है, वलम यूलद जो है वो हर हाल में आपको दाल वहां पे आप ऑलरेडी साकिन है, लेकिन आप उसको कलखला मुतवस्सिता ही कहोगे। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टॉपिंग देयर। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आप देखोगे, जो लास्ट है खलखला अकबर, ये सबसे ज्यादा यानी प्रोमिनेंट खलखला है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। खलखला का हर्फ लफ्ज के आखिर में आ जाए, हियर अगेन यू सी कि देयर इज अ वर्ड, और वो वर्ड के एंड में खलखला लेटर आ रहा है। ठीक है,
اور वो मुतहर्रिक भी हो और मुशद्दद भी हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कोई वर्ड आएगा कुरान में या कोई लफ्ज आएगा या कलीमा आएगा, सेम है, तीनों सेम है, वर्ड हो, लफ्ज हो, कलीमा हो, ऑल आर द सेम। उसके एंड में खलखला का लेटर आएगा, उस पर कोई हरकत रहेगी, हरकत क्या होगी? जबर, जेर, पेश या तनवीन होगी, और उस पर शद्दा भी रहेगा, या आप उसको क्या कहते हैं उर्दू में, तशदीद भी कहते हैं, ठीक है, तशदीद भी रहेगी। तो यहाँ पे वक्त की सूरत में स्ट्रॉन्ग खलखला होगा। ओके, आप यहाँ पे वक्त करोगे तो इसको स्ट्रॉन्ग खलखला करोगे, क्योंकि वहां पे शद्दा भी आ रहा है। अब इसको आप जो सूरत लहब या मसद है या जो भी है, इसको आप इसकी फर्स्ट आयत देखो, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब, ठीक है। मैं जो पिछला सब अदा की, आप देखे कि मैं बहुत जल्दी उसको बाउंस करा दी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसको यानी स्ट्रांगली पढ़ रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कलकला कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे शद्दा का लेटर है, ठीक है। तो इस तरह से वतब, 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 तब तब ऐसे नहीं करना है, यानी ए ऐड नहीं करना है, वतब, 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 इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको स्लो ही लेकर चल रही हूँ ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह कंफ्यूजन ना हो। तो अगला एक और लेकर मैं उसके बाद स्टॉप कर दूंगी, ताकि आप लोगों को जो भी सवालात हैं मुझसे वो पूछ लें इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह सिफाते लाजिमा गैर मुतजादा की जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है हुरूफ सफीर, ठीक है। सफीर कहा जाता है, सफीर माने सीटी को कहते हैं, ठीक है। लिटरल मीनिंग इसका जो है, या जो डिक्शनरी मीनिंग है, तेज सीटी के, यानी सीटी में भी जो तेजी होती है या शार्पनेस होती है, ठीक है। और जिन हुरूफ में ये सिफ्त पाई जाए इनको हुरूफ सफरिया कहते हैं। और वजाहत यानी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि ये हुरूफ अपने मखरज से सीटी की तरह तेज बारीक आवाज से अदा होते हैं। So whenever you pronounce these letters of huruf safir, you will find a whistling sound in that. ओके, विजलिंग साउंड इन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तीन ऐसे हरूफ हैं, सौद, अज, अस, अस, और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट सफीर यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सीटी की आवाज अगर आपको कोई पूछे कि हुरूफ सफीर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुरूफ हर्फ कौन सा है, तो आप कहोगे सीन, ठीक है। जब आप सीन अदा करोगे बनिस्बत जा और सौद के, आप सीन में सीटी की आवाज ज्यादा महसूस करोगे। तो आपको और मुझे इसके बाद जब भी आप ये हुरूफ से में कुरान यानी पढ़ते वक्त, तिलावत करते वक्त जब आप इन हुरूफ से गुजरोगे, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हमने ये क्लास अटेंड की, हमने सीखा कि ये तीन हुरूफ जो हैं ये हुरूफ सफीर हैं। इसमें सीटी की तेज सीटी की आवाज आती है, विजलिंग की साउंड आती है, तो हमें इसको ऐसे ही इंशाल्लाह इसके बाद अदा करना है। इसको ही कहते हैं गौर करना, टू पॉन्डर। कुरान का एक हक अदा करना क्या है? पढ़ने के साथ साथ उस पर गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको जब आप अदा करोगे, एक और बात मैं आपको बताती चलूं, अब तक हम जो अदा पढ़ते हैं ना, तिलावत करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि सौद और सीन में फर्क क्या है। हम पढ़ते तो ऐसे लगता सुनने वाले को कि दोनों सीन सीन ही हैं, सौद नहीं है। लेकिन आपको और मुझे जानना है, सौद हेवी लेटर है, हुरूफ इस्तिआला में से है, उसमें भी हुरूफ इदबाह का है, बहुत ज्यादा मोटा अदा होने वाला फुल माउथ लेटर है, ठीक है। जबान को पीछे से उठाना भी है, दरमियानी जबान को चिपकाना भी है, जबान की नोक को नीचे के दांतों के किनारों तक लाना भी है। तो ये सब सारी चीजें ना आपको और मुझे इसके बाद गौर करनी है पढ़ते वक्त। एक मेरी हम्बल यानी एक आजिजाना रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
ہمارا صرف رمضان میں کام ہوتا ہے کہ ہم تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. میرے اتنے پارے ہو گئے، میرے اتنے سورے ہو گئے، میرے اتنے یعنی جز ہو گئے، یا اتنی قرآن میں نے پڑھ لی ہے اللہ کے لیے. اس کے بعد رمضان میں بھلے ہی ایک پارا پڑھے لیکن صحیح سے پڑھے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے. بس روانی میں پڑھ لیے، 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، اور ہر حرف پر یعنی مخارج کی غلطیاں ہوتی رہی، قواعد کی غلطیاں ہوتی رہی، صفات کی غلطیاں ہوتی رہی، تو جہاں پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنی ہیں وہاں پر گناہ ہی ملیں گے. اور ایک اور بات بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں. رمضان میں جتنا انسان عبادت کرے گا، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر دیں گے، وہی پر اگر ہم اس کے کلام کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو وہ جو نیکیاں بڑا چڑھا کر اللہ دے گا وہی آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ گناہ بڑا چڑھا کر ہم دکھائیں گے اپنے اعمال میں. تو سوچیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو مجھے اس بات سے چڑ ہوتی ہے جب لوگ نہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے قرآن ختم ہوئے. اور یقین جانے جب سے میں تجوید سیکھنے لگی ہوں، الحمدللہ ابھی میرا یہ سفر جاری ہے. آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کا حق ادا کر کے یعنی قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو صحیح سے پڑھنے والے بنے. بہت جستجو، بہت سفر باقی ہے میرا بھی اس کا انشاءاللہ. تو نا مجھے چڑ اس بات سے ہوتی ہے کہ پہلے میں جب پڑھتی تھی تو وہ اتنا خوش ہو جاتی تھی میں کم عمری میں کہ الحمدللہ میں نے اتنے وقت میں اتنا سورہ کہف پڑھ لیا، 15 منٹ میں پڑھ لیا، یا میں پورا یعنی ایک پارا میں آدھے گھنٹے میں پڑھ لی، 20 منٹ میں پڑھ لی. لیکن آپ یقین جانے جب سے مجھے تجوید یعنی میں سیکھنے لگی ہوں نا، اتنا مجھے خوف ہوتا ہے، میں چاہتے ہوئے بھی سپیڈ نہیں پڑھ پاتی، کیونکہ حق ادا کرنا ہے اس کا. بھلے ہی ایک حرف پڑھے 10 ہی نیکیاں ملیں، یا ایک آیت ہی پڑھے، 2 آیت ہی پڑھے، لیکن مقصد ہو کہ صحیح پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے. بس اللہ ہمارے میں وہ اخلاق، وہ صفات ڈال دے، وہ غور و تدبر کرنے کا یعنی نظریہ ڈال دے ہمیں، ٹھیک ہے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو یہاں پر آپ کو ایک اور بات مجھے بتانی تھی. جب آپ صوت کو ادا کرو گے، آپ کو مرر کے سب سے پہلے تو یوٹیوب پہ جائیں گے، صوت کے مخرج والی ویڈیو کو دیکھیں گے کیسے ادا کرو گے کر کے. پھر اس کے بعد مرر کے سامنے کھڑنا ہے، ہونٹوں کو بغیر ہلائے صوت کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. آف 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 ٹھیک ہے. زبان نیچے کے دانتوں کے کناروں پر لگے گی، 2 دانتوں کے کناروں پر، لیکن کٹوری کی جیسے اس کے کنارے فولڈ ہوں گے، یہ پتا ہونا چاہیے صوت میں، ٹھیک ہے. تو اس کو ادا کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. از از بزنگ ساؤنڈ آتا ہے، اس 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 سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. بس 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 ٹھیک ہے. یہ سب غور کر کے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گی تو اس کو غور کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک میں کلاس اینڈ کرتی ہوں. اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں موقع عطا کرے. اور